वेलकम टू बिकम अ जीनियस एस्ट्रोलॉजर फाउंडेशन वर्कशॉप। ठीक है। एंड हिंदी इज ओके विद एवरीवन? हिंदी चलेगा ना? हम्म। चल जाएगा ना? आप बात भी कर सकते हो, बिंदास आप बात कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल बैच जहाँ पे यू हैव कम थ्रू सम रेफरेंस ओनली, राइट? ऑल ऑफ यू जितने भी लोग आएंगे आज, दे हैव come through some or the other kind of reference, right? Who are already learning from me, students. So I am giving you the special privilege to, you can talk to me also while we are doing the session also. All right, so welcome everyone. थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप, और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्या है आपका रिश्ता या फिर एक्सपीरियंस, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, प्लीज गो अहेड। जानते हैं आप, जानते हैं कि और completely freshers you are? या नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते अतुल जी। मुझे जैसे आपने बोला, मैं रेफरेंस से ही आया हूँ। हाँ राकेश श्रीवास्तव करके आपके पुराने स्टूडेंट उन्होंने रेफर जी किया। जी 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 जी। और आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजी की, अभी नए हैं उसमें एकदम? के साथ मैंने पहले पढ़ा हुआ है, तो हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई थी, तो अच्छा उन्होंने, अच्छा पर आप उनके साथ भी बैठ जाओ तो जो भी अच्छा अच्छा। छोटे मोटे डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, वेरी गुड अतुल जी, वेलकम वेलकम। ओके, स्मिता जी वेलकम। अंजनी जी आप बताइए। गुरु जी, आई एम फ्रॉम, मैं मुंबई का हूँ। ओके, वेरी गुड। आई एम और आल्सो फ्रॉम मुंबई। हाँ जी, आई एम आल्सो फ्रॉम मुंबई। yeah, I know that because one of my colleague who has learned this from you, he राइट gave you reference. राइट। So astrology is something, which has always, there are some unanswered questions, and excitement होता है, क्या है, कैसे है. करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू। And somewhere astrology is there within my family also, अरे like वाह। my grandfather ओके uh, ओके, was he knew astrology. Actually, it's a science. वेरी So गुड। so that is something, which has always बीन विथ यू। मतलब कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि नहीं, ये क्या है, वो क्या है. करेक्ट करेक्ट So करेक्ट। I वेलकम thought it वेलकम। is, yeah. Welcome to the world of astrology. All right, Nikita ji, welcome. Chaya ji, welcome. Okay. Hi, sir. Good Hello. evening. Very good evening. So, what about you and your astrology? Do you know astrology already, or you're I complete fresh? don't even know a of astrology. I'm zero in it. Very good. Best. That is the best scenario. If you Yeah, that's don't know what I any. don't. Yeah, I am a tarot reader, so I have an idea of tarot and a Acha. bit of numerology, but I don't know anything about astrology. Okay, okay. Welcome. Welcome to this session. All right. Thank you so much, sir. स्मिता जी, आपके बारे में बताइए। Yeah, hello, sir. I'm also a reference, yeah, obviously from Yeah. Shweta Jahan. अच्छा। Yeah, yeah, and I have also learned tarot, but I have a keen interest in astrology. So Right. I tried to learn from here and there. So I thought कि एक platform होना चाहिए जहाँ से Correct, correct, correct. right path मिल जाए तो हम सीख Very पाएंगे. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। राइट, ओके, वेलकम। छाया जी, छाया जी आपके बारे में बताइए। अपना छोटा सा कोजी बैच रहने वाला है, सो वी कैन हैव नाइस इंटरेक्शंस। ओके, आप बिंदास बात करिए, आप अनम्यूट करिए खुद को एंड यू कैन टॉक। छाया जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, आप म्यूटेड हो। हाँ, माइक अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, फिगर इट आउट। मरियम जी वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आर यू देयर? चलो, लेट अस गेट स्टार्टेड। And I hope you all have pen and paper with you. Yes? Yeah, yeah. Okay, very good. Right. In these 3 days, we are going to learn, I think, some foundations, some advanced, some many things about astrology in a very simple way. All right. And I have been teaching astrology since November or October 2021. I have been teaching astrology now, and more than 3,000 students have learned astrology. They are learning also. 500 active students who are learning. और अपने को एक अवार्ड भी मिला था ओवरऑल इंडिया में, आई थिंक 5th बेस्ट इंस्टीट्यूट टू टीच एंड कोच एंड ऑल ऑफ दैट। सो ऑल ऑफ दिस इज देयर। I am a master's in Vedic astrology. I've done my master's in Vedic astrology. और बनते 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 एक नई सिस्टम बन गई एस्ट्रोलॉजी की, राइट? इंटेंशन बिल्कुल Hello, भी नहीं। sir. हेलो। ओके,
हाँ छाया जी अभी सुन सकते हैं, करेक्ट। हाँ ना सर, सुन सकते हैं। हाँ, योगिता जी ने मुझे मतलब जी आप जी जी वो जी बताया, रेकमेंड किया। जी जी जी। तो मुझे भी थोड़ा मतलब फ्रेंड है मेरी, तो जानना था मुझे इसके बारे में और। हाँ। करेक्ट, ओके। तो आई होप आप सब लोग अपने अपने बर्थ डेट जानते हैं। यस, जी सर। बर्थ टाइम भी जानते हैं, राइट? ओके, वेरी गुड, ऑलराइट। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स, एब्सोल्यूट स्क्रैच। आपको थोड़ा बहुत आता भी रहेगा तो भी वी विल स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स एंड स्क्रैच, ओके, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद, तो मैं कह रहा था आपको कि बनते बनते एक नई सिस्टम बन गई एस्ट्रोलॉजी की, और जिसका नाम पड़ गया सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ओके। सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सालसा मतलब क्या? Let us try to understand this. What is Salsa method? Salsa stands for simple astronomical logical system of astrology. ठीक है, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से तो है सिंपल, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि बहुत मतलब डर लगता है कभी कभी एस्ट्रोलॉजी से, यार सर क्या क्या देखें कैसे देखें, राइट? इतने सारी चीजें होती है, कैसे देखना है, राइट? बट लेट मी टेल यू, एस्ट्रोलॉजी इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल, एकदम सिंपल है एस्ट्रोलॉजी, राइट? एस्ट्रोनॉमिकल हम हिंदी में क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोलेंगे? एनीबॉडी? आकाशीय। ठीक है, वेरी गुड, गुड ट्राई। खगोलिक, Goli. खगोल हाँ. खगोल शास्त्र बोलते हैं, राइट? खगोलिक शास्त्र बोलते हैं उसको, राइट? तो हम साइंस का यूज करेंगे, right? We are going to use complete science because I am a science student. I am a, by the way, civil engineer. Anybody engineer here? Yeah, science students here. Anybody science students here? Yeah, I am a software engineer. Oh wow, right? We are all science students, right? So once a science student, always a science student. सब चीजों को हम scientific way में ही देखना चाहते हैं, correct? Right? कि गौ माता को भाई रोटी खिलानी है तो क्यों, मतलब उसके पीछे का साइंस क्या है? राइट, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है, राइट? So we are going to learn in a very scientific way, astronomical way, and we are going to learn in a very logical way also. Okay? How many of you love logic? हर एक चीज का एक बार logic मिल जाएगा, algorithm मिल जाएगा, then you are happy, no? Yes. है कि नहीं? Yes. So that is what we are going to do, right? In these 3 days. It will be 3 days, today, tomorrow, and day after, 7 p.m. to 9 p.m. right? And there are going to be assignments also. Okay, so I will want you to submit your assignments to me on my personal number. Okay, तो ये मेरा number जो है ना, आप save कर लीजिए. I'm going to write it on the screen here right now. This is my number, okay? WhatsApp number. So please save this. तो जो भी assignments होंगे, जो भी doubts होंगे, you can ask me on this number. All right? और remember, आप लोगों को सबको special privileges है because you are all through reference. You are all through my current students, right? Okay. ठीक है. So you can save this number. Please save this number. All right? Okay. Now, let us first get started. Let us first get started with drawing of a kundli, drawing of a chart. Okay, let us get started with that. Okay, ekdam basic, right? Okay, so in basics, ekdam basic science. Okay, planets कौन से direction में move करते हैं around the sun? Anybody? Any idea? East to west. East to Clockwise. west. Clockwise. अच्छा, अंजनी जी बोल रहे clockwise around the sun. Okay, very good. दो अलग अलग आंसर ऑलरेडी मिल गए हैं अपने को. Okay, what do you think? Planets कौन सी दिशा में घूमते हैं around the sun?
करण जी, निकिता जी, ओप्पो फाइंड X2 वीडियो ऑन कर दीजिएगा, सब लोग वीडियो ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। मरियम जी, दिनेश, क्लॉकवाइज ही क्लॉकवाइज ही, हाँ, अच्छा, ओके। देखा, बेसिक में ही कितना कंफ्यूजन है ना। राइट, बेसिक मतलब हम एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं ना, बेसिक देखो अपना, राइट। So all planets move anti-clockwise way around the sun. Okay? All the planets move anti-clockwise way. घड़ी के कांटों की दिशा में नहीं, उसके उल्टे दिशा में। Planets keep on moving anti-clockwise fashion. Alright? Okay. अच्छा, ये जब planet का मूवमेंट होता है, क्या ऐसा होता है कि planet चलते 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 हैं, फिर बीच में ही रुक जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं 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 अभी और आगे नहीं जाना है, थोड़ा टाइम पीछे चलते हैं अभी, फिर वो पीछे चलते हैं, फिर वापस रुक जाते हैं, फिर वापस आगे चलते हैं, ऐसा कुछ होता है? व्हाट डू यू थिंक? मोहिंदर जी तो ना बोल रहे हैं। I think that might be possible. हो सकता है शायद। अच्छा, अंजनी जी बोल रहे हैं दैट इज पॉसिबल। ओके, इंजीनियर बोल रहे हैं। पर कभी कभी सुनते हैं ना कि वो बकरी हो गए, मार्गी हो गए, तो बकरी हो बकरी गए, is मार्गी हो गए, ओके, ठीक है। that could be व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? Gravitation. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ a मोशन, body is said to be in motion until and unless some it will forces always stay in motion motion unless until a and force is until applied, it is acted upon by an external external force. force. Right. जब तक कोई प्लैनेट को बाहर से आकर कोई भी एस्टेरॉइड बोलो या कोई भी दूसरा प्लैनेट बोलो टकरा नहीं जाता है, तब तक प्लैनेट तो चलते ही रहेंगे ना, गोल 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 गोल। उनको, वो तो वैक्यूम में है, वहां पे तो फ्रिक्शन भी नहीं है कि नहीं? वो जो पाथ है उनका, जो स्पीड है उनका, जो चलते रहेंगे, वो तो हमेशा चलते रहेंगे, नॉन स्टॉप, राइट। और उनको भाई खुद का ऐसा कॉन्शियस ब्रेन नहीं दिखता है कि जो रुकेंगे, वापस पीछे चलेंगे, वापस आगे चलेंगे, राइट। वो तो अपने को ही मिला है कॉन्शियस ब्रेन। अंडरस्टूड नो? सो प्लैनेट एक बार जो मूव हो रहा है ना, वो तो मूव ही होते रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो कभी भी रुकेगा नहीं, उल्टा नहीं चलेगा, आगे नहीं चलेगा। अंडरस्टूड, राइट? Okay, so let us draw a kundali chart. Okay, so go ahead. Go ahead, take a blank paper, right? And draw a square on the blank paper. Draw a square, ठीक है? लेकिन stop. Square draw करेंगे एंटी क्लॉकवाइज फैशन। ओके, क्यों एंटी क्लॉकवाइज? ताकि हमको रिमाइंडर मिले कि प्लैनेट्स मूव एंटी क्लॉकवाइज फैशन, राइट? तो ड्रॉ अ स्क्वायर इन एन एंटी क्लॉकवाइज फैशन, राइट? सो बना दिया, स्क्वायर बना दिया। यस एवरीबॉडी? Yeah. वेरी गुड। नाउ ड्रॉ द डायगोनल्स, डायगोनल्स ज्वाइन कर दो। ओके, डायगोनल्स ज्वाइन हो गए, राइट? और उसके बाद सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, वो भी एंटी क्लॉकवाइज फैशन में ही कर देना। ये सेंटर से ये सेंटर, फिर ये सेंटर से ये सेंटर, फिर ये सेंटर से ये सेंटर, और फिर ये सेंटर से ये सेंटर। बन गई कुंडली, है कि नहीं? इट इज सो सिंपल। आप लोग मेरे साथ में बनाना, दिस इज अ नॉट अ लेक्चर, दिस इज अ वर्कशॉप, नो? सो वी विल वर्क टुगेदर। ऑलराइट, डन? बना दिया? अच्छा, अब एक छोटा सा टेस्ट है आप लोगों का, स्मॉल टेस्ट। ये बनाते बनाते आपको कैसे फील हुआ? आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। ओके, हाउ मेनी यू फील्ड एक्साइटेड? राइट, खुद को पूछो, हाँ? या फिर गुदगुली हुई, या अच्छा लगा, या फिर आपको लगा, या फिर इट्स नॉट लाइक एनीथिंग, चलो बना दिया हमने, बना दिया, राइट? कितने लोगों को एक्साइटेड फील हुआ? एनीबॉडी? एक्साइटेड, अच्छा, एक्साइटेड। ओके, वेरी गुड। मैंने जब पहली बार बना था, वो सो एक्साइटेड, मुझे ही मालूम नहीं पड़ रहा था, अरे मैंने तो खाली स्क्वायर बनाया, ट्रायंगल बनाया, ये किया वो किया, लेकिन बट आई वाज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, अरे वाह वेरी गुड।
बाद में मालूम पड़ा कि ये खाली हम रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं बना रहे, दिस इज एन एनर्जी मैट्रिक्स दैट वी आर ड्राइंग. ओके, दिस हैज एनर्जी इनटू इट. ये जो कुंडली है इसी में एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है. तो अगर आपको एक्साइटेड फील हुआ, अच्छा फील हुआ, वेरी गुड फील हुआ, तो यू आर नेचुरली यू आर रेडी टू लर्न एस्ट्रोलॉजी. ओके, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर, हाँ ठीक है चलेगा, ओके राइट, तो फिर शायद लेट्स सी वेयर दिस जर्नी टेक्स अस. राइट, अच्छा, इसमें कितने सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको? कैन यू काउंट? 12. 12 सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं. एवरीबडी एग्रीज? Yes. Okay. Very good. 12 sections are there. Correct. Now let us understand. ये जो sections है इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में houses, या फिर हिंदी में भाव, या फिर घर भी बोलते हैं. पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ऐसे भी बोलते हैं. Okay. These are houses. These are भाव. Okay. Now let us understand numbering of these houses. Numbering of the houses. Now numbering में क्या होता है? Numbering में ये होता है कि house numbering remains the same for every one of us. Okay, so you can write this down. House numbering remains the same for everyone. ठीक है, जैसे करण जी का अगर हमने चार्ट देखा, उनके हाउस नंबरिंग विल बी द सेम ओनली. छाया जी का हमने अगर चार्ट देखा, उनके उसमें भी हाउस नंबरिंग हम सेम ही देखेंगे. मेरा चार्ट आप देखोगे, उसमें भी हाउस नंबरिंग विल बी द सेम ओनली. अंडरस्टूड? House numbering will always stay the same for all of us. Okay, now how is the houses numbered? Let us see. ये जो सेंटर में ऊपर वाला जो घर है, ये वाला, ये हमेशा होता है हाउस नंबर 1. ओके, ये जो सेंटर में ऊपर वाला घर है, दिस इज ऑलवेज हाउस नंबर 1. नाउ यू हैव टू रिमेंबर a very simple pattern which we call it as the flower pattern. Okay, so flower pattern of astrology. Okay, salsa method of astrology. Have you heard of the flower pattern? Let us see what it is. ठीक है, पहले घर से चालू करो and go anti-clockwise. Right? Why anti-clockwise? Because planets rotate anti-clockwise. Right? So let us go anti-clockwise. Start from the first house. बाहर के दोनों घरों को जोड़ो and then come inside again. ओके, फिर वापस निकलो, बाहर के दोनों घरों को जोड़ो एंड वापस कम बैक अगेन. वापस बाहर निकलो, बाहर के दोनों घरों को जोड़ो, कम बैक अगेन एंड वापस बाहर चलो, बाहर के दोनों घरों को जोड़ो एंड देन कम बैक एंड जॉइन इट. है ना, बन गया फ्लावर. नाउ दिस फ्लावर विल गाइड अस कि सारी नंबरिंग कैसे करनी है कि नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी मिस हो जाएगा आपका कोई नंबरिंग. राइट, बट दिस फ्लावर विल गाइड अस. अभी नाउ यू कैन ऑल्सो टेल मी, अगर ये फर्स्ट हाउस है तो ये वाला क्या हो जाएगा? सेकेंड हाउस. वेरी गुड. ये वाला थर्ड हाउस, ये वाला फोर्थ. गो एड, मार्क इट इन योर नोटबुक. फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. 12 houses. सारे houses हमने cover कर लिए. Simple, no? Now it becomes very easy to remember also कि कौन सा house कौन से number का है. How many of you agree? Correct, no? Okay, very good. आप लोग बिंदास बातें कर सकते हो माइक के ऊपर. राइट, ऑलराइट, इतना बना लिया? यस, ओके, वेरी गुड. नाउ लेट, पे आप लोग लिख रहे हो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? हाँ छाया जी,
हाँ सर, स्क्रीन पे आप जो लिख रहे हैं ना वो मुझे नजर नहीं आ रहा। आप फोन थोड़ा के ऊपर बड़ा। है क्या? फोन के ऊपर है? हाँ हाँ सर, हाँ अच्छा इसलिए अच्छा अच्छा शायद। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। इसमें फॉन्ट तो बड़ा नहीं रहेगा, देखता हूँ फिर हाँ भी क्या कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है हाँ, ना। आप अभी चेक करिए, उसमें कुछ अलग अलग विंडो आते रहेंगे, उनको साइड में कर दीजिएगा आप। ठीक है। नहीं सर, जी जी। एक्चुअली अपन जूम कर सकते हैं, जूम करने से इट बिकम हाँ क्लियर, छाया राइट? जी, वो जूम करके देखिए आप। हाँ सर, एक मिनट देख। अच्छा, ठीक है। हाँ सर, हाँ जूम हो गया करके। ना? हाँ 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 सर, हाँ थैंक वेरी गुड। ओके, ठीक है। सो यू। everybody understood this? Yeah. Simple? Yes? Okay. If you have understood this, type in IGA in the chat box. IGA मतलब क्या मालूम है? हमको खुद को बोलना है बार बार, I am a genius astrologer. I am a Okay. genius astrologer. ठीक है? That is IGA. Okay, just type in IGA. निकिता जी, स्मिता जी, very good. Okay. अच्छा, दोनों जने लिख दिया? लिखो लिखो, अतुल जी लिखो, सब लोग लिखो। Okay. We will have fun also while learning. All right. Okay. Now let us understand राशिस। Okay. राशि का नाम सुना है आपने? राइट, पिक्चर भी आई थी, व्हाट्स योर राशि, है ना? ओके। नाउ व्हाट इज अ राशि? राशि ऐसी चीज है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। ओके, लेकिन इट इज वेरी वेरी सिंपल, एकदम सिंपल है। ओके, सो सोलर सिस्टम आप इमेजिन कर सकते हो? कैन यू इमेजिन द सोलर सिस्टम? राइट, कैसे होती है सोलर सिस्टम? सन होता है बीच में, फिर मर्क्यूरी, वीनस, राइट, अर्थ, मार्स, राइट, फिर वो पूरा एस्टेरॉइड का बेल्ट आ जाएगा, पत्थर 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 पत्थर, फिर जुपिटर, राइट, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, राइट, दिस इज योर सोलर सिस्टम। अर्थ के नजदीक कौन है? हमारी ये सोलर सिस्टम, ये जो प्लैनेट्स है, ये अर्थ के ज्यादा नजदीक है कि जो हमको दूर जो तारे दिखाई देते हैं वो अपने नजदीक है? अर्थ के नजदीक कौन है? मरकरी, बुध। हाँ, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, प्लैनेट्स अर्थ के नजदीक है या स्टार्स अर्थ के नजदीक है? I think stars are closer to Earth. Stars are closer to Earth. I Only think one star is closest to the Earth, that is the sun. Right? Baki every star is very far away. Far, far, far away. All the stars that are there, that are very far away. Closest to us are the planets. ठीक है? अच्छा, okay. Is everyone married यहाँ पे? yes, yes. Yes. अरे वाह, जी। Anjani is very proud of it. Yes, I'm married. Right? Okay. So if you are married, now you tell me, जब आपके स्पाउस आपके नजदीक होते हैं तब आपके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, कि जब वो आपसे एकदम दूर होता है तब आपके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है उनका? इफेक्ट तो बराबर ही होता है। दोनों केस में बना रहता है, राइट? अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर नजदीक रहेंगे तो शायद वो ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं ना आपको, है कि नहीं? राइट, Okay. दूर रहेंगे तो ज्यादा कंट्रोल नहीं रहेगा, आप थोड़ा सा झूठ भी बोल सकते हो, हाँ 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 मैं सब्जी लाने जा रहा हूँ और आप यहाँ पे गेम खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो, राइट? यू कैन डू दैट, नो? सो जो चीज अपने ज्यादा नजदीक है उसका अपने ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है। सिंपल प्रिंसिपल, यस और नो, राइट? अर्थ के नजदीक प्लैनेट्स है, स्टार्स बहुत दूर है ना? तो अर्थ के ऊपर और हमारे ऊपर प्लैनेट्स का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है और स्टार्स का ना के बराबर समझ लो इफेक्ट, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे। स्टार्स का अपने ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता ही नहीं, और एस्ट्रोलॉजी को हम सन को हम प्लैनेट ही मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोनॉमी में इट इज अ स्टार, बट इन एस्ट्रोलॉजी हम उसको प्लैनेट ही मानते हैं, राइट? ये वाला फंडा समझ में आ गया आपको, राइट? सो यू कैन राइट देयर कि प्लैनेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी। प्लैनेट्स ही सब कुछ है, everything is planets only, because they are the only energies that are affecting us. Let me ask you a simple question. क्या सन का अपने ऊपर असर होता है?
क्या असर होता है, सन का क्या असर है अपने ऊपर? हीट बेसिकली। हीट, ओके, और Energy. Sun gives light एनर्जी, to energy. So energy. लाइट, लाइट, यस। करेक्ट, Growth. ग्रोथ। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनको धूप टॉलरेट नहीं होती है। कितने लोगों को धूप नहीं टॉलरेट होती बिल्कुल भी? ऐसा कुछ है, कोई है? मतलब थोड़ा टाइम भी धूप में चले गए तो मतलब यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट छाया जी वैसे। हाँ सर, हाँ सर। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको धूप टॉलरेट हो जाती है, राइट? Yeah. कोई प्रॉब्लम नहीं, धूप चल जाएगी। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बारिश बहुत पसंद है। कौन है ऐसे बारिश जो पसंद है उनको? राइट, ओके, वेरी राइट, ओके। सो ये जो है जो प्लैनेट्स है इनका अपने ऊपर असर हो रहा है। मून का क्या असर हो रहा है अपने ऊपर? एनी आइडिया? Feelings or emotions. Sir. वो एस्ट्रोलॉजी छोड़ो, डायरेक्ट मून का अपने ऊपर क्या इफेक्ट होता है? कैन यू सी? अर्थ के Soothing ऊपर effect. क्या इफेक्ट होता है? हाई टाइड्स आते हैं इससे। It gives हाई soothing टाइड, effect. लो टाइड, करेक्ट। Tides. क्या बोल रहे हैं मोहिंदर जी? Soothing effect it gives. सूदिंग Soothing इफेक्ट effect देता है, है, करेक्ट, राइट। शायरी, शायर लोग शायरी लिखते हैं, वो भी तो इफेक्ट ही है ना भाई, राइट? इट्स अ बिहेवियरल पैटर्न, है कि नहीं? Relaxation भी देता है, नींद Relax- सोने का टाइम मिल जाता है। करेक्ट। और रात को थोड़ी बहुत जितनी चाहिए उतनी लाइट भी मिल जाती है, राइट? तो मून का भी Yes. असर है, डेफिनेटली देयर इज सम असर ऑफ द मून आल्सो ऑन द अर्थ। डू यू नो मून के वजह से अर्थ की रोटेशन स्पीड दिन ब दिन स्लो होते जा रही है? डिड यू नो दैट? नो। वेरी स्मॉल डिफरेंस, बट अर्थ, मून की वजह से अर्थ की स्पीड स्लो हो रही है घूमने की, ठीक है? सो मून इज आल्सो हैविंग एन इफेक्ट आल्सो। तो अगर सन का इफेक्ट अपने ऊपर हो रहा है, मून का इफेक्ट अपने ऊपर हो रहा है, तो डू यू अग्री बाकी प्लैनेट्स का कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता रहेगा? या यस और नो, राइट? यही इफेक्ट को स्टडी करने का जो साइंस है, इट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोलॉजी, राइट? दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष। नहीं, मुझे तो लगा भविष्यवाणी बुलाते हैं। नहीं, नहीं, ज्योतिष शास्त्र, श्योर? अच्छा, ज्योतिष का मतलब क्या? ज्योति का मतलब क्या है? लाइट। Light. ज्योति इज लाइट, नो? राइट? ज्योति इज नॉट भविष्य, नो? नहीं। ज्योति इज लाइट, नो? अच्छा, लाइट कभी लगती है अपने को? व्हेन डू वी नीड लाइट? When there is darkness. When there is darkness, correct. When there is darkness, we need जब light. ध्यान करते तब भी हम मतलब एक लाइट को ही फोकस करके ध्यान करते। अच्छा, very good. Right? So when there is darkness, we need light. Right? कितने कितने आप में से कितने लोगों का जिंदगी थोड़ा सा अंधकार में है? सॉरी, एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ, राइट? लेकिन होता है ना, मेरे भी लाइफ में चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस है, राइट? I guess अभी everyone, sir. 1.5 साल पहले तो मेरे अकाउंट में खाली 50 रुपया था, एक पूरे हफ्ते के लिए अकाउंट में 50 रुपए, राइट? और मैं ये नहीं बोलता कि मेरे लाइफ में ऐसे ही होगा, आपके लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस आई रहेंगी, यस और नो? जी। राइट? फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, रिलेशनशिप चैलेंजेस आते हैं, हाँ। राइट? अभी फॉर एग्जांपल, आई एम completely staying alone for the past 2.5 years now, right? No parents with me, spouse and daughter, they are also far away, right? Gone long time ago and all of that, right? So there are relationship challenges also, health challenges are also there, है कि नहीं? राइट? किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम, किसी को बोन्स का, हड्डियों का प्रॉब्लम, जॉइंट्स का प्रॉब्लम, राइट? तो हर एक के लाइफ में कहीं ना कहीं तो उजाला होता है और कहीं ना कहीं तो अंधकार होता ही होता है, यस और नो? कितने लोगों को ये अंधकार को हटाना है? Was everyone? नहीं, जरूरी नहीं एवरीवन, नहीं सर, मुझे हटाना है, क्योंकि हटाना है। मेरे हस्बैंड गए तब मुझे ऐसा लगा कि मतलब टोटल मैं मतलब वो अंधकार में चली गई ऐसे, पर मैंने खुद से निकाला उसमें से अभी। करेक्ट, वेरी ट्रू। हाँ, हम सब लोगों को अपने अपने चैलेंजेस होती है, राइट? हम सब लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ तो है ही, है कि नहीं? सो ये अंधकार अगर हटाना है तो एस्ट्रोलॉजी इज आवर मार्ग है अपना। एस्ट्रोलॉजी इज वन वेरी सिंपल वे टू फाइंड लाइट। भविष्य तो बहुत छोटी बात है,
एस्ट्रोलॉजी से मैं तो आपको बाद में सिखा भी दूंगा कि अगले 30 साल देखो, अगले 20 साल देखो, अगला 10 साल देखो, अगले 2 महीने देखो कैसे निकलने वाले हैं, अगला दिन भी देख लो। अंडरस्टूड, राइट? लेकिन ये तो छोटी बात हो गई। लेकिन वो जहां जहां अंधकार है वहां वहां अगर लाइट देखनी है तो एस्ट्रोलॉजी सीखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। सो ये जो है राशि, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, राइट? कितने लोगों ने रात में ऐसे तारों को देखा हुआ है? हैव यू सीन द स्टार्स? Yes. ओके, कहाँ पे गए थे तारों को देखने के लिए? छत पे। छत पे। घर के बाहर बालकनी। ओके, तो तारों को अपन ने छत से देखा होगा, राइट? चलो, एटलीस्ट यू ऑल आर लकी कि तारे दिख जाते हैं आपको, राइट? अदर सिटीज में तो दिखते ही नहीं है, करेक्ट? अभी आप सोचो, आप तारों को देख रहे हो, राइट? और रोज रोज क्या हो रहा है? रोज क्या हो रहा है? अलग 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 प्लैनेट्स आते हुए दिखते हैं आपको, और वो स्काई में यहां से वहां तक जाते हुए दिखते हैं, राइट? तो आप चाहिए तो एक चीज नोट कर सकते हो, तारे जो है दैट इज फिक्स्ड। तारे मूव नहीं करते हैं। द स्टार्स डू नॉट मूव, planets keep moving around the sun. Understood, right? Stars don't move, planets keep moving, right? अच्छा, अब अगर किसी को आप अपना एड्रेस बता रहे हो तो आप लैंडमार्क देते हो ना, राइट? KFC के पास, राइट? बिग बाजार के पास, या ये स्कूल के पास, वो स्कूल के पास, आप लैंडमार्क देते हो। तो प्लैनेट का एड्रेस बताने के लिए ये जो तारे हैं ये बन जाते हैं लैंडमार्क। समझ रहे हो आप, राइट? हम क्या बोलते हैं, आज सन जो है आज इन तारों के पास में है, मून जो है वो इन तारों के पास में है, करेक्ट? और ये जो तारों के जो ग्रुप्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टलेशंस, कॉन्स्टलेशन ये शब्द सुना है आपने? या राइट, वो होता है कॉन्स्टलेशंस। तो जो तारों का ग्रुप है वो हिलता नहीं वहां से, वो वहीं पे रहता है। ये बन जाता है लैंडमार्क, ये बन जाता है स्काई में एक दिशा जिसको हम राशि बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज अ राशि? राशि इज नथिंग एल्स बट जस्ट अ डायरेक्शन इन द स्काई। इट इज जस्ट अ लैंडमार्क इन द स्काई। मतलब हम क्या बोलेंगे, आज चंद्रमा जो है वो एक्वेरियस में है। इसका मतलब क्या, हम अगर स्काई में देखेंगे, एक्वेरियस की दिशा में दिखेंगे तो चंद्रमा दिख जाएंगे अपने को। अंडरस्टूड, राइट? फिर हम क्या बोलते हैं, आपके जन्म के टाइम से फॉर एग्जाम्पल मार्स इज इन लियो, लियो राशि का नाम है। तो लियो क्या है? लियो एड्रेस है किसका? मार्स का, आपके चार्ट में, राइट? अभी देखना पड़ेगा आपके चार्ट में, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। तो ये प्लैनेट के पोजीशन को डिफाइन करने का रास्ता एड्रेस मतलब राशि। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस और नो? राइट, सिंपल है ना? सो फार आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट, वी आर अंडरस्टैंडिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी लॉजिकल वे, एवरीथिंग इन अ वेरी लॉजिकल वे। ऑलराइट, okay. Any questions so far? Feel free to ask. No questions? No. Acha, just give me 1 minute.
Yeah, sorry for that. ठीक है. So Rashi is just a direction in the sky. All right. Now, how many Rashis are there? 12. 12 राशिस. Okay. 12 राशि क्यों? भाई सिंपल है ना, 360 12 डिग्री को 12 से डिवाइड कर दो तो 30-30 डिग्री एग्जैक्ट मिल जाएंगे, है कि नहीं? हम अगर चाहते हैं तो 60 डायरेक्शन भी बना सकते थे, 60 राशियां भी बना लेते थे अपन, फर्क नहीं पड़ता था, राइट? हम चाहते तो 27 नक्षत्र हैं, वो भी डायरेक्शंस देख सकते हैं, है कि नहीं? इट इज जस्ट अ डायरेक्शन, इट इज जस्ट द एड्रेस ऑफ द प्लैनेट इन द स्काई, राइट? Okay, so let us consider 12. Now, numbering of the Rashis might be different for different people. House numbering remains the same, but Rashi numbering might be different for different people. Understood? मतलब आपके चार्ट में राशि का नंबरिंग अलग हो सकता है, मेरे चार्ट में राशि का नंबरिंग अलग हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस तो फॉलो होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला सीक्वेंस तो फॉलो हो जाएगा। और ये जो राशि के नंबर्स होते हैं ना, वो कहाँ लिखे जाते हैं? ये देखो, मैं भी फ्लावर निकाल देता हूँ और आई विल मार्क सम कॉर्नर्स। फर्स्ट हाउस में जो भी राशि आएगी, इट इज रिटन इन दिस कॉर्नर। सेकेंड हाउस के लिए यहाँ पे ये कॉर्नर में लिखा जाता है, थर्ड हाउस में ये कॉर्नर में। तो राशि का नंबरिंग ना हमेशा कॉर्नर्स में ही होता है। अंडरस्टूड? ये वाले कॉर्नर्स में ही राशि का नंबरिंग होता है। मैं आपको आज ये भी सिखाऊंगा कि चार्ट कैसे बनाना है। आई विल टीच यू दैट आल्सो। ओके, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे चार्ट में यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 7 नंबर की राशि आती है। ओके, अभी फिलहाल उसका नाम वगैरह छोड़ दो, अभी अपने को याद भी नहीं रखना है कुछ। ओके, खाली नंबर से हम खेलेंगे फिलहाल तो, ठीक है। तो मेरे फर्स्ट हाउस में 7 नंबर की राशि आ गई। अगर इसका मतलब क्या हुआ, 7वीं दिशा जो है, राइट, वहां पे मेरा फर्स्ट हाउस बैठ जाता है, राइट। 7वीं जो डायरेक्शन है स्काई में, 7वें जो स्टार्स है, वहां पे मेरा फर्स्ट हाउस बैठ जाता है। ओके, फिर अगर यहाँ पे 7 नंबर आएगा तो यहाँ पे कौन सी नंबर की राशि आएगी सेकेंड हाउस में? 8. 8, करेक्ट। रिमेंबर द फ्लावर पैटर्न अगेन। सो यहाँ पे 8 नंबर आ जाएगी, करेक्ट। उसके बाद तीसरे हाउस में 9 नंबर, 9, फिर 10, 10, 11, 11, 12, 12, 1, 13, 1, ओके, 1, करेक्ट। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अंडरस्टूड? अभी आप मुझे बताओ, आपके लिए क्विज, 10वें भाव में कौन से नंबर की राशि बैठी है? 4 नंबर। 4 नंबर की राशि। वेरी गुड, अमेजिंग, एक्सेलेंट, नो, सो सिंपल। ओके, 5वें भाव में कौन से नंबर की राशि बैठी है? 11th राशि बैठी है। एक्सेलेंट, अमेजिंग। 12वें भाव में कौन से नंबर की राशि बैठी है? 6 नंबर की राशि बैठी है 12वें भाव में। एक्सेलेंट, वेरी गुड। अभी मुझे बताओ, उल्टा क्वेश्चन है, 9 नंबर की राशि कौन से घर में बैठी है? 3 में। 3 नंबर में बैठा है। वेरी गुड। टाइप इन IGA इन द चैट बॉक्स। सिंपल है ना? सो फार सिंपल, सबको समझ में आया? यस और नो? यस। ओके, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। यू आर ऑल अमेजिंग पीपल, एकदम एनर्जेटिक, राइट? ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड
द थर्ड पार्ट ऑफ दिस, इसमें अभी अभी मेरे चार्ट में यहाँ पे जो है सन प्लैनेट लिखे हुए हैं, राइट? मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ब्लू में सन, अरे ब्लू लिख, ओके सन, SU मतलब सन, ठीक है? तो सन का एड्रेस क्या होगा मेरे चार्ट में? व्हाट इज सन्स एड्रेस? 7th house. 7th house. 7th house, first Rashi, right? That is the address of sun in my chart, right? Sun stays in the 7th house in the first Rashi. Understood? Simple, no? Okay. मेरे मून जो है यहाँ पे रहते हैं, Fifth house. मीन्स व्हाट? अभी मून का एड्रेस क्या होगा? पांचवा घर house, 11th 11th राशि। Fifth house. Moon house, is 11th staying in Rashi. the 5th house, 11th Rashi. 11th. Okay. समझ में आया? राइट? ओके। फिर यहाँ पे जो है मर्क्यूरी भी है, वीनस भी है। तो मर्क्यूरी का एड्रेस क्या आ गया? 6th house, 12th Sixth house. 12th 12th राशि। house. 6th house 12th राशि। करेक्ट, 6th हाउस 12th राशि, मर्क्यूरी रहते हैं किसके साथ में? वीनस के साथ Venus के में। साथ। वीनस का भी सेम एड्रेस बताएंगे हम। वीनस भी 6th हाउस में रहते हैं, 12th राशि में रहते हैं और मर्क्यूरी के साथ में है वहां पे, राइट? ओके। फिर मार्स, MA मतलब मार्स। अभी बताओ मार्स का एड्रेस बताओ मेरे चार्ट में। 7th house 7th house, first first राशि। Rashi with sun. करेक्ट, सन के साथ में है, राइट? 7th हाउस फर्स्ट राशि। सिंपल? करेक्ट। Yes? Okay, very good. Then let us look at Mars, okay? Jupiter. यहाँ पे है JU मतलब जुपिटर, ठीक है? बृहस्पति, हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। मार्स को हिंदी में मंगल बोलते हैं, वीनस को हिंदी में शुक्र बोलते हैं, मर्क्यूरी को हिंदी में बुध बोलते हैं, सन सूर्य, मोनस चंद्र, राइट? जुपिटर, क्या एड्रेस है जुपिटर का? 4th house 10th राशि। Fourth house. करेक्ट, 4th हाउस 10th राशि, राइट? वहां पे जुपिटर बैठे हैं। देन यहाँ पे है SA मतलब सैटर्न। वेरी गुड। क्या है एड्रेस सैटर्न का, अभी बताओ। Second house, 8th राशि। 2nd हाउस 8th 8th राशि, राइट? सो सिंपल। ओके। देन यहीं पे हम हमारी सालसा मेथड एस्ट्रोलॉजी में इन प्लैनेट्स को भी गिनते हैं। यहाँ पे है यूरेनस, UR मतलब यूरेनस, हिंदी में हर्षल, राइट? एक्चुअली हर्षल हिंदी नहीं है, वो जिन्होंने डिस्कवर किया यूरेनस को उनका नाम हर्षल करके एक एस्ट्रोनॉमर थे, राइट? खैर फिर भी हम हर्षल बुला ही सकते हैं, राइट? यूरेनस का एड्रेस? 2nd house, Second house, 8th Rashi with Saturn. Rashi with करेक्ट, अमेजिंग, वेरी गुड, सिंपल ना, क्या बात है। देन NE मतलब नेपच्यून, ठीक है? नेपच्यून बैठे हैं 3rd हाउस में 9th राशि, राइट? ओके। यहाँ पे बैठे हैं PL, प्लूटो, राइट? PL मतलब प्लूटो, करेक्ट? प्लूटो का क्या एड्रेस है मेरे चार्ट में? First house, 7th. फर्स्ट हाउस 7th राशि, करेक्ट? ओके। फिर देयर आर 3 more planets। अभी ये जितने भी planets हमने देखे अभी तक, they are called as physical planets। कौन से planets फिजिकल? सन,
Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. How many planets are these? 9. Nahin, 10. 10 planets. 10. Correct. These 10 planets, they are physical planets. मतलब क्या, they exist. उनका अस्तित्व actual में है. They are physical planets, right? Okay. Then there are 3 imaginary planets. Okay. Astrology में और सालसा मेथड की astrology में there are 3 imaginary planets, right? One is Rahu. Okay. मेरा जो राहु है वो यहाँ पे है. क्या एड्रेस होगा राहु का? 7th house, first Rashi. Seventh house, first First Rashi with Sun and with Mars. Sun and Mars. Very good, amazing मोहिंदर जी. Right. और उसके ऑपोजिट ही आएंगे केतु. केतु का क्या एड्रेस हो जाएगा? First house, 7th Rashi. करेक्ट, फर्स्ट हाउस 7th राशि. एंड नाउ देयर इज, मैंने कहा था 3 है इमेजिनरी प्लैनेट्स. इमेजिनरी क्यों? ये प्लैनेट जो है ना वो एक्चुअली एग्जिस्टिंग नहीं है. इनके गोले नहीं है उधर स्पेस में. दे आर जस्ट इमेजिनरी पॉइंट्स इन द स्काई. अंडरस्टूड, राइट? दैट इज राहु एंड केतु. एंड देयर इज वन मोर इमेजिनरी पॉइंट इन द स्काई जिसको हम बोलते हैं लग्ना. LA, या फिर इंग्लिश में असेंडेंट, ASC. ठीक है. और जो लगना जो होता है वो हमेशा 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 ऑलवेज देयर इन द फर्स्ट हाउस ओनली. फॉर एवरी वन ऑफ अस ascendant will be in the first house only. Okay. Okay. कभी कभी चार्ट में लिखेंगे भी नहीं कि ascendant करके या लगना करके, लिखेंगे भी नहीं, लेकिन you have to remember कि it is always there in the first house only. तो अभी physical planets और imaginary planets मिलाकर कितने planets हो गए? 13 planets. So remember, when we are going to deal with astrology, we are going to talk about these 13 planets. Right? 13 planets, 12 rashis, 12 houses. Okay? We are going to talk about all of these things, right, in astrology. Okay? Enjoying so far? Are you liking this? Right? Simple. समझ में आ रहा है? Right? Okay. Now, before we go and check how to create your own kundli, I am going to immediately teach you कि अपना खुद का chart कैसे बनाना है. How many of you agree? Sometimes there can be some negative energy around us. Yes or no? Yes. कभी हुआ है suddenly पैसा गायब हो गया है, या फिर suddenly खुशियां गायब हुई है, या फिर सडनली हेल्थ चैलेंज आ गया. अभी तक कल तक तो ठीक थे यार, अचानक क्या हो गया, फिर बड़ी बीमारी आ गई, ऐसा कुछ हुआ है, राइट? या फिर अनकंट्रोलेबल झगड़े हो रहे हैं. अनकंट्रोलेबल झगड़े मतलब उसका कोई यही नहीं, मतलब कुछ भी उठाकर फेंको, मारो, बर्तन फेंको, चाकू फेंको, जो फेंकना है, जो हाथ में आएगा फेंक दोगे. राइट? कंप्यूटर का स्क्रीन मिल गया वो भी फेंक के पटक दिया, एंड ऑल ऑफ दैट. राइट? देखो ये जो है ना, ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर तो है नहीं, है ना? आप लोग समझ रहे कि नहीं? राइट? देखो जो जिस हिसाब से हम स्कूल में गए, कॉलेज में गए, सारी चीजें हमने पढ़ी देखी, राइट, एजुकेशन मिला अपने को, तो नॉर्मल केस में हम खुद से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना ये सारी चीजें तोड़ फोड़ करना. राइट? मैंने बहुत किया है तोड़ फोड़ मेरी जिंदगी में. राइट? मेरे एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ मैं कुछ अलग नहीं हूँ आप लोगों से. राइट? अगर ऐसा वाला गुस्सा आ रहा है, अनकंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल वाली चीजें हो रही है, अनकंट्रोलेबल वाले झगड़े हो रहे हैं, राइट, तो थोड़ा सा ना हमें अवेयर हो जाना चाहिए. अचानक पैसा आना बंद हो गया है, अचानक बर्बाद, मतलब अचानक जो पैसा रेगुलरली दे रहा था अचानक वो बोलता है कि नहीं अभी तो दे ही नहीं सकता है, जो मैंने दिया है वो ही वापस कर दो, ये कर दो, वो कर दो. राइट? स्पेशली अचानक. तो थोड़ा सा ना हमें अवेयर हो जाना चाहिए
क्योंकि there might be some negative energies around us. Okay. अच्छा. How many of you believe in these negative energies or how many of you do not believe? अच्छा. Okay. आप बोलोगे Believe in that. ओके सुधीर सर, आप तो साइंस स्टूडेंट हो, हाउ कैन यू बिलीव इन दिस नेगेटिव एनर्जी? लेकिन ना मेरा एक बहुत बड़ी कहावत है, वो मूवी था ना ओ माय गॉड, देखिए मूवी ओ माय गॉड, उसमें एक बड़ा मस्त डायलॉग था, एक सच्चा नास्तिक ही एक सच्चा आस्तिक बन सकता है, राइट? सो सेम स्टोरी मेरी भी हुई, राइट? सडनली जब मेरी हियरिंग एक दिन में रातों रात 50% चली गई, okay, that is when I realized कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, राइट? फिर मेडिकली भी चेक किया, उनको कोई रीजन दिख ही नहीं रहा है, लेकिन जब वो साउंड का टेस्ट वगैरह किया, वो सारी चीजें करी, दिखाई दिया कि 50% हियरिंग इज लॉस्ट। एंड फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई देखो सुधीर जी, यू शुड टेक केयर, 10 सालों में या 15 सालों में इट कैन कम डाउन 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 एंड कम टू डेफनेस ऑल्सो, इट इज पॉसिबल। फिर मैं बोला, और वो एक आवाज चालू हो गई कान के अंदर में, राइट? वो टिनिटस बोलते हैं उसको, टेक्निकल टर्म टिनिटस का है, राइट? टू करके कान बजते रहता है कंटिन्यूसली, अभी भी बज रहा है, राइट? सो सडनली हो गया, अब भी सही था, अभी ये चीज हो गया। अच्छा, ऐसे भी नहीं कि मैं किसी का झगड़ा कर रहा हूँ कि कुछ हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कुछ बस बैठा हूँ चेयर में, राइट? तभी थोड़ा सा डाउट आया कि कुछ तो हो सकता है, ऐसी सारी चीजें, राइट? तभी डाउट आया। फिर आई स्टार्टेड गोइंग टू एस्ट्रोलॉजर्स एंड हीलर्स, राइट? थोड़ी सी फट भी गई, यू कैन इमेजिन, नो, राइट? ऐसा हो सकता है ना, राइट? तो थोड़ा सा डर गया, घबरा गया, मालूम नहीं पहली बार हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई स्टार्टेड कंसल्टिंग सम हीलर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स, राइट? तभी जो मेरा मिस गाइडेंस हुआ, ओ माय गॉड, राइट? एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला, पहले से डरा हुआ हूँ, राइट? एक एस्ट्रोलॉजर में ने बोला, सुधीर भाई देखो, दिल को थोड़ा थाम के रखो, मैं कुछ बोलने वाला हूँ आपको। और वो बोलते हैं कि आपकी बेटी ही नहीं है। अभी आप समझ सकते हो मैं गया था कौन से प्रॉब्लम के लिए, राइट? और फिर वो देख रहे, मेरा चैट वैट देख रहे और मुझे बोल रहे कि मेरी बेटी नहीं है। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि लॉजिकल ब्रेन बोल रहा है, अरे सुधीर उसी दिन तो तू उधर ही था, राइट? हॉस्पिटल में ही था, पहले तेरे हाथ में आई, सब साथ में ही तो था सब कुछ। सो लॉजिकल ब्रेन स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, राइट? लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, जब बैंड बजी होती है आप लोग कुछ भी बिलीव करने के लिए तैयार हो जाते हो? यस सर? यस। है कि नहीं? इसी का फायदा बाहर लोग उठाते हैं, राइट? इसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं। फिर क्या बोलते हैं? पूजा करो, हवन करो, 15,000 दो, 20,000 दो, 25,000 दो, राइट? मैं बोला चलो इसको थोड़ा सा ना, इंजीनियर हूँ, थोड़ा सा दिमाग वाला हूँ, महाराष्ट्र टॉपर हूँ, तो थोड़ा मैं बोला कि चलो अभी हम ना और एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, राइट? वो सेकंड ओपिनियन करते करते 25 ओपिनियन लिए मैंने, ठीक है? उसमें से 25 वाला आदमी क्या बोला कि सुधीर भाई नहीं, वो लड़की का तो टेंशन नहीं है, वो लड़की तुम्हारी लड़की है, उसका मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन शायद तुम्हारी माँ नहीं है। मैं बोला sorry sir, sorry. नहीं, आई ऑल्सो लाफ एट इट नाउ, राइट? इट्स ओके टू लाफ, राइट? फिर मैंने डिसाइड किया बस अभी ना, पेंसिल और रबर, अभी मैं ही सीखने वाला हूँ, राइट? अभी बस हो गया, दूसरों के ऊपर डिपेंड होना बस हो गया, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? लेकिन लाइफ में वैसे भी ये फंडा हमको यूज करना चाहिए, जितना कम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगा उतना अच्छा है। यस सर? नो, दिस इज द मेन रीजन व्हाई आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, right? And within a very short period of time I was able to do masters also. I was able to create this nice institute, 3,000 students and all of that. बहुत अच्छा चल रहा है अभी, सब एस्ट्रोलॉजी की बदौलत है, एस्ट्रोलॉजी की देन से, यू नो, आई हैव अ सेकंड हैंड BMW also, राइट? सो मैं वो बार मैं याद करता हूँ, अरे वो 50 रुपया था अकाउंट में, सुधीर याद है तेरे को? 50 रुपया एक हफ्ता पूरा, राइट? लेकिन आज ऐसी सिचुएशन की थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, इट इज गोइंग ऑन वेरी गुड, ठीक है? बाकी चैलेंजेस
challenges है, relationship challenge है, and all of that. But I am very happy. How many of you agree happy होना बहुत जरूरी है? Yes or no? Very important. Very Yes. important, no? Right. So we are now going to do a test. Immediately we will come to know whether there is any negative energy around us or not. Okay? Be ready for the test. Okay? और जिनको वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर देना. Do you have hands? अरे वाह, congratulations. Right? Do you have 10 fingers? Yeah. Or you have more than that, or you have less than that, whatever number of fingers you have. ठीक है? हर एक फिंगर का ना ऊपर वाला हिस्सा देखो, और लाइट के अंदर ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, 3 हिस्से होते हैं ना फिंगर के, उंगली के 3 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला हिस्से को देखो. ठीक है? और लाइट वगैरह में अच्छे से देखो, चाहिए तो दूसरा फोन लगाओ और उसका फिर बैटरी चालू करो. आई विल शो यू व्हाट टू सी. मैं मेरे फिंगर्स आपको दिखाता हूँ. ओके, सो ये जो मेरा फिंगर, ये 2 साल पहले का है. ओके, दिखाई दे रहा है? दिस इज माय लेफ्ट हैंड थंब. ओके, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि अपना बॉडी इज एन अमेजिंग मशीन? यस और नो? Yes. है कि नहीं? नो वन कैन डिनाई दैट, राइट? और ये इतना अच्छा मशीन है कि ये हमें सारे इंडिकेशंस पहले ही देते रहता है, राइट? इनफैक्ट योर बॉडी विल गिव यू इंडिकेशन ऑल्सो, मतलब 3-4 years बिफोर ऑल्सो कि हार्ट में कुछ तो ट्रबल हो रहा है, राइट? दैट इज हाउ एडवांस्ड आवर बॉडीज आर, राइट? आवर मशीन्स आर. नेगेटिव का एनर्जी का इंडिकेशन हमारा बॉडी ऑलरेडी देता है, जो फिंगर्स के ऊपर वाले हिस्से. ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देखो, ये राउंड राउंड लाइनें दिख रही हैं. ये है फिंगरप्रिंट, राइट? जो हम डॉक्यूमेंट पे लगाते हैं, राइट? जो हम, दिस इज फिंगरप्रिंट, राइट? दिस इज यूनिक टू मी, राइट? ये जो हर एक लाइन है ना, ये आपके ब्रेन के अंदर का एक कनेक्शन है, राइट? हर एक लाइन जो है, ये जो राउंड राउंड है, कभी राउंड राउंड होगा, कभी स्ट्रेट होगा, कभी शंख होगा, कभी पहाड़ी होगा, राइट? जो भी अलग अलग शेप, या कभी गोल 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 होगा. ये हर एक लाइन जो है आपके ब्रेन के अंदर की कनेक्शन है. लेकिन कैन यू सी ये वाला कट? फिर ये वाला भी कट है, देखो. ये वाला भी कट है, देखो. Then there is this cut also, right? ये कट है ना, ये अपने को बता रहे हैं, क्योंकि जब भी फिंगरप्रिंट के ऊपर अलग से जब कट आता है, आप समझ लेना कि वो वाला ब्रेक जो है आपके ब्रेन में भी हो रहा है. ब्रेन के कनेक्शंस में भी ब्रेक आ रहा है. और फिर आप कंफ्यूज रह सकते हो अगर बहुत सारे कट्स है तो, या फिर सडनली है ना कुछ तो चैलेंज आ सकता है, राइट? आपको मालूम नहीं पड़ता एग्जैक्टली क्या करना है, क्लाउडी क्लाउडी लगता है दिमाग में, राइट? वो मतलब ठीक से सोच नहीं पाता ना आदमी, ऐसे बोलते हैं, राइट? वैसे लग जाता है, एंड ऑल ऑफ दैट, करेक्ट? कभी कभी हॉरिजॉन्टल होते हैं कट्स, कभी कभी वर्टिकल होते हैं, कभी कभी ना स्पाइडरमैन जैसा ऐसा वेब रहेगा. ठीक है? अभी 10 की 10 उंगलियों को देखो. ठीक है? लुक एट ऑल द 10 फिंगर्स, आराम से, ध्यान से, और चेक करो कितनी उंगलियों के ऊपर ऐसे कट्स हैं, कितने डीप है, कि शैलो है, राइट? कितनी तादाद में है, राइट? कितनी उंगलियों के ऊपर ये कट्स है, देखो, एंड लेट मी नो. Finger, almost every finger, I guess. अच्छा, ये जॉइंट मत देखना, उंगली का जॉइंट मत देखना. ये नहीं, not joint, हाँ, not हाँ. joint. थंब के ऊपर ज्यादा कट है. कभी ज्यादा है. थंब के ऊपर, फिंगर कभी उस फिंगर्स पे है, पर अंगूठे में ज्यादा है, मतलब हाँ, लेफ्ट में, exactly. ज्यादा है. थंब में ज्यादा है. राइट में. करेक्ट. 2 thumbs and 2 fingers, not that deep, very shallow.
शैलो ना, ओके, ठीक है। मेरा एक प्रश्न है, आप होगा ना हाँ जो अतुल जी, सर्कल होगा, क्या? सर्कल बताइए ना कि जो रेखाएं होती हैं हाँ ऊपर वाले पोर्शन में, अगर वो शंख जैसी होगी या राउंड होगा, ये दो बोला ना आपने, नो, देयर आर 9 पैटर्न्स। 9 पैटर्न होते हैं। तो मेरे 10 में से तो एक ही जैसे पैटर्न, एक में फर्क है, और लेकिन जो लाइंस आती है वो लाइंस बॉटम में, ऊपर बीच में कहीं कट नहीं, अच्छा, मतलब जॉइंट पे कट है ना, जो जॉइंट है वही है ना, थोड़ा सा ऊपर लाइन होना। ठीक है, ठीक है, अप्लाई नहीं यार। ऑलराइट। तो अगर अगर 10 में से 5 या ज्यादा उंगलियों के ऊपर अगर ये कट्स है, तो इमीडिएटली यू शुड बिकम अवेयर। You should become aware of what? कोई ना कोई तो नेगेटिव सिचुएशन आपके अराउंड होगी, या कोई ना कोई तो नेगेटिव चीज आपके अराउंड होगी, या फिर कोई ना कोई तो नेगेटिव पर्सन आपके अराउंड है, और आपको शायद फील भी होता रहेगा। और स्पेशली बहुत डीप अगर रहेंगे ना तो भी, मतलब दिखाने के लिए आपको दिखाएंगे कि बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, ये वो राइट, दिखाने के लिए, बोलने के लिए बोलेंगे, लेकिन मन में आपके बारे में अच्छे विचार नहीं रख रहे, राइट। डोंट वरी, आपको खाली डरा नहीं रहा हूँ, आपको सोल्यूशन भी देने वाला हूँ, राइट। ओके, कितने उंगलियों पे देखो, 5 या ज्यादा, यू शुड I बिकम guess more than 5. 5 से ज्यादा होंगे ना तो यू शुड बी वेरी अवेयर। Sir, thumb में it's very clear. Then index finger और middle finger में भी है. कम है रिंग में और लिटिल में, या नहीं होगा तो भी पता अगर नहीं. But कम है तो इट बाकी इज जस्ट स्टार्टिंग, द इफेक्ट इज जस्ट स्टार्टिंग। हाँ तो it's there, but yeah. But more is in thumb. Is on thumb. Sorry. करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो अपर पोर्शन ऑफ द फिंगर है ना, दिस हाँ. रिप्रेजेंट्स योर स्पिरिचुअल एनर्जी, Okay. दिस रिप्रेजेंट्स योर ऑरा। ऑरा में अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है ना तो इमीडिएटली यहाँ पे दिखाई देगा आपको, उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन इस पे होगा, ठीक है। So that means what, there is some or the other negative person around you who is not thinking so good about you. And how to find out what is the negative energy? Astrology, right? We'll come to know everything. हमें सब मालूम पड़ेगा कौन है वो, आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके अगले दाव पेच क्या होने वाले हैं, सब चीजें मालूम। लेकिन आपको एक ऑलरेडी एक फीलिंग होगी कि कोई ना कोई तो है, राइट। अभी प्रॉब्लम कभी होता है मालूम है, जब हम ऐसे लोगों को भी प्यार करते बैठते हैं, राइट, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो पापी और एक तो पुण्यवान, यस और नो, राइट। अच्छा, पुण्यवान को प्यार करने वाला खुद क्या बन जाता है, वो भी पुण्यवान बन जाता है, राइट। लेकिन पापी को प्यार करने वाला खुद क्या बनेगा, वो भी पापी बनेगा। इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग, यस और नो? सिंपल लॉजिक है, राइट। ओके, प्रॉब्लम क्या है, हम अवेयर नहीं रहते हैं कि हमारे में लाइफ में ऐसे पापी लोग कौन कौन है, वी आर नॉट अवेयर। कभी कभी हमारे माइंड को लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा है अपने लिए, लेकिन फिर वही क्या करता है, किसी तांत्रिक को मिलकर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाता है। Is it possible? 100% सर, ये जो कान का वाला किस्सा है ना, वो ब्लैक मैजिक वाला ही किस्सा है। I see. I interviewed actually 25 tantrics after that, and I literally learned from them. Learned means I saw and I got educated. मैं खुद कुछ नहीं प्रैक्टिस करता हूँ, I don't want to do it also, but I did a lot of research there. Understood? Okay. And they Yeah. actually showed me कि how they create your doll. फिर आपका कुछ बाल मिल जाएगा या खून मिल जाएगा या कोई भी पहना हुआ कपड़ा मिल जाएगा. That is a representation of your energy, right? And then they can अगर ये इसको ना कुछ तो विधि बोलते हैं, it is some kind of practice only. वो कान के थ्रू एक ऐसे पिन को घुसाड़ देते हैं, right? And that moment, and if you are also very vulnerable, आप में से कितने लोग sensitive लोग हैं एकदम?
कुछ भी हो जाए गुस्सा आ जाएगा, कुछ भी हो जाए रोना आ जाएगा, कुछ भी आ जाए चिल्लम चिल्ली, Yes, yes, yes. राइट। या फिर टेंशन आ गया तो मतलब हफ्तों हफ्तों टेंशन लेकर बैठोगे, राइट। सो यू आर ऑल सेंसिटिव पीपल, नो। और मेरे क्लास में ना ज्यादातर सेंसिटिव लोग ही आते हैं, राइट। या फिर किसी की तो बैंड बजी है, कुछ ना कुछ तो बैंड बज रही है, राइट। दे कम टू आवर क्लासेस, राइट, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, नो, दैट इज व्हाई यू आर कमिंग, राइट। सो एस्ट्रोलॉजी कैन टीच अस कि हु आर दीज पाखंडीज अराउंड अस। इसका एक सिंपल सोल्यूशन मैं अभी बता देता हूँ। आर यू रेडी फॉर अ सिंपल सोल्यूशन? यस, इमीडिएट। Yes. हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट खुद के हाथों ने बनाया हुआ खाना खाया करो, ओके। हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट, ओके। हाँ स्मिता जी, आप तो रोज बनाते रहेंगे, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे राइट, जिनको खाना बनाना आता भी नहीं होगा। Especially male, sir. हाँ? Especially बना males, लेंगे right? सर, खुद ही बना बना लेते हैं। अरे कुछ भी बना लो, थोड़ा सा चावल भी बना लो, लेकिन हफ्ते में 2 बार खुद ने बनाया हुआ खाना खाओ। नहीं, खुद बनाना और किसी को खिलाना भी है, खुद ही खाना सिर्फ। खिलाओ तो चलेगा, वो भी Okay, चलेगा, okay. लेकिन खाओ तो खुद ही, राइट। ठीक है। राइट, खुद ही खाओगे ना तो भी बेटर है, क्योंकि खिलाते खिलाते क्या मालूम पाखंडियों को भी खिला दिया आपने, है कि नहीं, राइट। हम्म। सो सीख लो, छोटी छोटी डिशेस सीख लो, राइट। चाय भी खुद बनाना सीख लो। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं मेरे जब आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं मेरे किस्से में याद कर रहा हूँ, मालूम है आपको। मुझे कुछ भी नहीं आता था, राइट। आई वॉज born with a silver spoon in the mouth, right? For 35 years I did not even enter the kitchen, also did not even pick up a kadai and all. लेकिन लाइफ ने ऐसी सिचुएशंस दिखा दी, राइट। नाउ आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन कुक एनीथिंग नाउ, ओके। आप बोलो दाल खिचड़ी बनाओ, तड़का लगाओ, ये करो वो करो, राइट, सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, एनीथिंग आई कैन डू, एनीथिंग आई कैन मेक नाउ। एंड जब से मैं खुद के हाथों का बनाया हुआ खाना खा रहा हूँ ना, तब से मेरा हीलिंग रेगुलरली रियली चालू हुआ, राइट। जो भी नेगेटिव एनर्जीज था। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री वाटर इज अ वेरी सेंसिटिव एनर्जी? यस और नो? Yes, राइट। yes. डू यू ड्रिंक वाटर? यस। अच्छा, ये पानी आप किसके हाथों से पी रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। अच्छा, तड़का लगाया हुआ खाना खाते हो, राइट। मराठी में फोड़नी बोलते हैं जिसको, राइट। वो तेल डालते हैं, राइट, वो हल्दी डालते हैं, ये डालते हैं, राइट। अगर कोई भी पर्सन नेगेटिव इंटेंशन से कोई भी चीज को अगर तड़का लगा रहा है, तड़का इज अ वेरी सेंसिटिव चीज, ओके। इनफैक्ट पूरा खाना इज वेरी सेंसिटिव। यू कैन प्रोग्राम द फूड ऑल्सो, जाने अनजाने में भी फूड प्रोग्राम हो जाता है, राइट। दैट एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड, आपके नेगेटिव थॉट्स गेट ट्रांसफर्ड इनटू द फूड, एंड देन यू ईट दैट फूड, राइट। एंड दैट इज वेयर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, अंडरस्टूड। इसलिए हफ्ते में 2 बार खुद खाना बनाया करो, और खुद भी जब खाना बनाओगे खुद के लिए अच्छी अच्छी चीजें बोलो, राइट। Okay, so this is one solution, all right. Very simple, very practical solution that you have to do. आप में से कुछ लोग अगर रोज भी खाना बनाते रहोगे, लेकिन आपका माइंडसेट देखो कैसा है खाना बनाने के टाइम, या फिर आपकी अगर मेड बनाती होगी खाना, राइट, और मेड खाना बनाते बनाते आज का इस महीने का पगार ही नहीं मिला, अभी मैं तो छुट्टी मारने वाली हूँ, अभी 3-4 दिन आऊंगी नहीं, कैसे लोग हैं ये लोग, एंड ऑल ऑफ दैट। अगर ऐसे खाना ऐसे सोचते सोचते अगर मेड खाना बनाएगी, राइट, तो वो तो सारी नेगेटिविटी आपको असर कर जाएगी। सो बी वेरी केयरफुल, ओके। बिकॉज फूड, ये जो है ना, फूड इज वन सोर्स जहां से एनर्जी कैन गो इन. इनफैक्ट वॉट एवर होल्स आर देयर इन द बॉडी, those are the places of energy exchange. Understood? यहाँ से एनर्जी का आना जाना चालू रहता है हमेशा, right? Okay, so this is one solution. All right, so please remember that. Okay, और ये भी डरने की जरूरत नहीं है अगर बहुत सारी उंगलियों के ऊपर है, तो सबसे पहले तो अवेयर हो जाओ. स्पेशली अगर वेबिंग बन रहा है ना, वेब, तो ज्यादा अवेयर हो जाना, ठीक है?
वेब मतलब क्या, दोनों राइट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, राइट, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर वेबिंग रहेगा ना तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी और ब्लैक मैजिक ऑल्सो। ओके, ठीक है, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं। वंस यू आर अवेयर नो आधा ब्लैक मैजिक तो उधर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो अगर ऐसी नेगेटिव सिचुएशन है, देयर इज one more very simple principle that you have to understand. Okay, let us talk about salsa method change formula. How to create a positive, motivating change in your life. Okay, how many of you want to know this formula? Right, can I tell you this formula? It is very simple. There are 3 steps. Okay, step number 1. What is step number 1? Step number 1 is awareness. Okay, that is step number 1. Awareness मतलब क्या? हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे लाइफ में नेगेटिव लोग कौन है। जब तक वही मालूम नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। यस और नो? हम गलत लोगों को ही प्यार करते बैठेंगे, गलत लोगों की हेल्प करते बैठेंगे, गलत लोगों को ही पैसा देते बैठेंगे, राइट? सो स्टेप नंबर 1 इज अवेयरनेस, राइट? अपने चार्ट से हमें मालूम पड़ेगा। कभी कभी ना अपने पेरेंट्स ही हमारे लिए नेगेटिव होता है, लेकिन अभी तक हमने देखा ही नहीं वो चीज को। कभी कभी हमारा स्पाउस ही हमारे लिए नेगेटिव होता है, लेकिन हमने देखा ही नहीं वो चीज को। हो गया अभी 18 साल हो गए शादी को, 15 साल हो गए शादी को, चला आ रहे, मालूम है, मन में मालूम है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, फिर भी चला आ रहे, सोसाइटी प्रेशर में भी चला रहे। हाउ मेनी ऑफ यू, अगर इंडिया में तो सोसाइटी प्रेशर इज द बिगेस्ट थिंग, यस सर, राइट? हे भगवान, डिवोर्स, ओ माय गॉड, राइट? ऐसे ऐसे सारी माहौल बन जाता है कि नहीं? That is so step number 1 is awareness. हमें मालूम होना चाहिए कि अपने लाइफ में अपने लिए लोग कौन है और अपने अगेंस्ट लोग कौन कौन है। That is step number 1. Step number 2 क्या है? step number 2 acceptance, right? कि जो भी चीजें नेगेटिव है या जो भी चीजें पॉजिटिव है अपने लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है। हम किसको बदल सकते हैं? दूसरे को बदल सकते हैं कि खुद को बदल सकते हैं? खुद को, है कि नहीं? तो दूसरा जैसा भी है, से फॉर एग्जाम्पल आपका स्पाउस आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, करेक्ट? उसके ऊपर कुछ भी करने के पहले सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि मेरा स्पाउस जो है मेरे लिए नेगेटिव है, ये अवेयरनेस होना जरूरी है, राइट? और फिर क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा स्पाउस ऐसा ही है, उसका बिहेवियर ऐसा है, राइट? उसका कर्मा ऐसा है, शायद मेरे लाइफ में उसका प्रारब्ध ऐसा है। प्रारब्ध मतलब शायद उसकी वो वही काम करने के लिए आया है मेरी जिंदगी में, पिछले जन्म का कोई लेन देन करने आया। हाँ, आपने बहुत पीटा रहेगा उसको पिछले जन्म में। अंडरस्टूड, राइट? अभी वो आ गया पीटने को आपको। इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? यस, राइट? ओके, ठीक है। So acceptance is very important. And then comes the third most important step. Step is what? Behavioral change. Okay? Behavioral change. That is the third step. What behavioral change? फिर वो स्पाउस के साथ अलग तरीके से बिहेव करना, राइट? उसके वो कर्मा को खत्म करना, उसके तरफ का एटीट्यूड अलग रखना, राइट? जरूरत पड़े तो दूर हो जाना, राइट? ये सारे चेंजेस तो हम ही ला सकते हैं, राइट? और अभी देखो 3 साल से एस्ट्रोलॉजी सीखी है, 1 साल से सिखा रहा हूँ, मास्टर्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सारी चीजें हैं। आई एम नॉट वेयरिंग एनी जेमस्टोन, नो जेमस्टोन,
राइट? जरूरत ही नहीं है, राइट? ये सारी चीजें जो है ना, जेमस्टोन, फिर आपको बोलते नहीं बैठो और चैंटिंग करो, राइट? फिर बोलते ये हवन करो, राइट? ये सारी चीजें, इनका इफेक्टिवनेस इज ओनली 20%, राइट? ये सारी चीजों का इफेक्ट इज ओनली 20%। आप लोगों को कितने सारे लोग मिलेंगे, अरे राहु शांति करवाई थी लेकिन चैलेंजेस तो अभी भी लाइफ में है, राइट? काल सर योग की पूजा कराई थी, 25,000 रुपया दिया था, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी लाइफ में है, राइट? ऐसे कितने सारे लोग रहेंगे, आप भी रहेंगे मेरे ख्याल से, है कि नहीं? सो ये सारी चीजें दे वर्क ओनली 20%। मेन 80% चेंज विल हैपन बाय चेंजिंग योर एक्शंस। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, यस और नो? Correct. True. Only when you change yourself, only when you change your actions, then only it will happen, right? So behavioral change is everything. अभी ये सारी चीजों का गाइडेंस हमें कौन देगा? अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, बिहेवियर चेंज, ये सारी चीजों का गाइडेंस हमें कौन देगा? Chart. कौन? The chart which will prepare. Chart, correct, very good, very good. So astrology, right? Astrology will give us all of this guidance. एस्ट्रोलॉजी हमें अवेयरनेस भी देगा, एक्सेप्टेंस भी देगा और बिहेवियरल चेंज भी करवाएगा। Is everybody understanding? Right? So on this note, I am going to give you a small gift. Okay? Do you like gifts? Everyone. Everyone? Okay, very good. ठीक है, तो गिफ्ट इज दिस। अपने गूगल व्हाट्सएप ग्रुप में एक गूगल फॉर्म आ जाएगा आज के सेशन के बाद, ओके? और गूगल फॉर्म में आपको ना आपका लग्न चार्ट अपलोड करना है, ठीक है? यू हैव टू अपलोड योर लग्न चार्ट। मैं सिखाऊंगा आपको आज कि लग्न चार्ट कैसे बनाते हैं, वो अपलोड करना है आपको, ठीक है? और 72 आवर्स में मतलब 3 दिनों में आपको एक ईमेल आ जाएगा। सालसा TM करके ईमेल आईडी है अपना, वहां से ईमेल आ जाएगा आपको, ठीक है? और वो ईमेल में क्या रहेगा? आपके बारे में थोड़ा बहुत, राइट? वो चार्ट में से जो भी दिख रहा है, आपका और एस्ट्रोलॉजी का रिश्ता कैसे हो सकता है वो, राइट? एस्ट्रोलॉजी सीखने का कैसा चांस है, कितना मतलब आपको समझ में आ सकता है, कितना नहीं आ सकता है, एंड ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीजें एंड थोड़ा बहुत इधर उधर की चीजें आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इन दैट ईमेल। इज दैट ओके? और इज दैट वेरी गुड? Very good. वेरी गुड, ओके। और आपको जब भी ईमेल आएगा, आपको इनबॉक्स या फिर स्पैम वाला एक फोल्डर रहता है ईमेल में, वो भी चेक करते रहना है आपको, क्योंकि ईमेल आईडी आपका सेव नहीं रहेगा ना, तो शायद कभी कभी ईमेल स्पैम में भी चला जाएगा। तो चेक दीज थिंग्स, ओके? 72 आवर्स में ये गिफ्ट आ जाएगी आपको, ऑलराइट? ओके, सो ऑन दैट नोट, लेट अस नाउ सी हाउ टू create a kundali. Okay, let us see how to create a kundali. So right now we are going to use software only. So what we have to do is we have to go to a website called as astrosage.com. Okay, let me share the screen with you. ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है, बट यू गो विद astrosage.com, ठीक है? ये ऐसे दिखेगी, astrosage.com, ठीक है? यहाँ पे ये फर्स्ट चैट फ्री वगैरह प्रमोट करते रहेंगे, यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट, ठीक है? यहाँ पे नीचे देखो कुंडली बर्थ चार्ट, वहां पे आप एंटर कर दो, अपना नाम एंटर कर दो। तो मैं आप लोगों के सामने मेरी कुंडली अभी बनाता हूँ पूरी, ठीक है? सो बर्थ डिटेल्स में नाम आ जाएगा सुधीर खोलम, आप अपना नाम डाल देना, मेल या फीमेल, राइट? सिलेक्ट कर लेना। फिर बर्थ डेट, राइट? माय बर्थ डेट इज 15th April 1985 एंड टाइम इज रात के 8:05। अभी यहाँ पे जो है ना,
ये 24 आवर्स का फॉर्मेट है। टाइम फॉर्मेट जो है ना 24 आवर्स का है। मतलब रात का 8 मतलब कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे? 20। अगर शाम के 5 बजे रहेंगे तो कितना लिखेंगे? 17। करेक्ट, उसमें 12 ऐड कर देना आप, राइट। अगर सुबह का 8 रहेगा तो 8 ही, राइट। तो 24 आवर फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो मेरा 20:05 5 मिनट 00 सेकेंड का इतना मालूम नहीं है। एंड बर्थ प्लेस, माई बर्थ प्लेस इज थाने। थाने लिखने के बाद या आपका बर्थ प्लेस लिखने के बाद ऐसे एक ड्रॉप डाउन आएगा, तो ड्रॉप डाउन पे ही सिलेक्ट करना। अंडरस्टूड? बाकी और कहीं सिलेक्ट मत करना, ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट कर लेना और फिर क्लिक करना गेट कुंडली, राइट। फिर ये वाली स्क्रीन आएगी, वापस क्लिक कर देना बर्थ चार्ट और कुंडली, यहाँ पे क्लिक कर देना, बन जाएगा आपका लग्न चार्ट, राइट। ये नवांशा चार्ट हम लेवल 4 में सीखेंगे, अभी हमको इसको देखना भी नहीं है, राइट। लेकिन ये लग्न चार्ट, ये वाला जो पोर्शन है ना लग्न चार्ट का, ये वाला इतना आपको वो गूगल फॉर्म में अपलोड करना है बस, ठीक है। कैन यू डू दैट? यस राइट। ये आपको फोन में भी, फोन का ऐप भी आता है, उसमें से भी आप बना सकते हो। और गो टू डेस्कटॉप और लैपटॉप एंड क्रिएट दिस ऑल्सो। अब ये देखो, चलो हम आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं। जुपिटर को क्या एड्रेस बताओ? जुपिटर का एड्रेस बताओ। अभी यहाँ पे आपको हाउस नंबर्स नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे हाउस नंबर्स? क्योंकि सबके लिए सेम ही रहता है। करेक्ट, जुपिटर इज सिटिंग इन द 4th हाउस 10th राशि, करेक्ट। अंडरस्टूड नो? या वेरी गुड। चलो मून का एड्रेस बताओ। 5th house 11th राशि। 5th हाउस 11th राशि, करेक्ट। ओके, यूरेनस का एड्रेस बताओ। 2nd house 8th राशि। करेक्ट, अमेजिंग, वेरी गुड, गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। देखो, यू कैन नाउ नो हर एक प्लैनेट का एड्रेस आप बता सकते हो, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे फर्स्ट हाउस में एक प्लैनेट लिखा नहीं है, कौन सा है वो? लग्न। करेक्ट, असेंडेंट, राइट, जो हमेशा रहता ही है फर्स्ट हाउस में, राइट, वो लिखा नहीं है वहां पे, ठीक है। सो इट इज देयर, बट Why this is called Lagna chart only? Because of the ascendant planet or? because of the ascendant. This is also called as ascendant chart. Tomorrow I will teach you how to create moon chart also, right? Tomorrow I'll teach you how to create sun chart also. And I'll ask one thing, why there are, matlab, what are these numbers meaning? Like That also we will learn tomorrow. They are called as degrees. Okay. We will learn that tomorrow, degree of the planet. ठीक है? All right. अभी अगर आप लैपटॉप में देखोगे, डेस्कटॉप में, तो नीचे जाओगे तो ये टेबल भी दिख जाएगा आपको। I have a point. Yes, sir. In case I don't have exact time. Okay. तो फिलहाल जो भी अंदाज वाला टाइम मालूम है वो ले लो, या फिर किसी का चार्ट रहेगा आपके बेटे का, या उनसे परमिशन लेके वो है। you work on that chart फिलहाल. And when we go to level 3 and all, now you will learn birth time rectification also. So you will be able to find your time also. Okay, that's fine. Right? That's good. Okay. ठीक है? तो ये देखो, ascendant, ASC मतलब, right? वो आपको यहाँ पे दिखाएगा कौन सी राशि में है। ये longitude मतलब डिग्री होती है। 18 डिग्री 39 मिनट्स 10 सेकेंड। सन एरीज में है 1 डिग्री 55 मिनट 35 एंड ऑल्सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अभी फिलहाल आपको खाली ये लग्न चार्ट गूगल फॉर्म में अपलोड करना है, ठीक है। बना पाओगे सब लोग? यस यस, ओके। और रिकॉर्डिंग वापस देख लेना चाहिए, तो बिकॉज यू नो फ्रॉम द रिकॉर्डिंग यू विल बी एबल टू फॉलो द स्टेप्स ऑल्सो, ठीक है। All right. So on that note, now let us learn the naming of the Rashis and the Swamis of the Rashis. Okay, let us learn that. Right. But before we go there, let us quickly take a 2-minute break.
आप भी जाओ, पानी पानी पियो, राइट, चाय वाय लेकर आओ, राइट। 2 मिनट में वी विल कंटिन्यू, ओके, जस्ट 2 minutes, ओके। So it is how much? 8:27, no? 8:30 we will continue, okay? Go ahead, go ahead. So you will not tell us how to make a chart to find out what negative energy is there? What? आप अभी हम लोग को बताओगे कि चार्ट कैसे बनाना टू फाइंड आउट व्हाट अगले 2 दिनों में थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ जाएगा आपको, so that we'll come to know what negative energy is there around right, us. right. Within 2 days you will come to know, ठीक है? Yeah. Okay. पूरा नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन थोड़ा आइडिया आना चालू हो जाएगा, ठीक है? And were you not afraid जब आप तांत्रिक लोग के पास गए तो आपको डर नहीं लगा? इनिशियली 1-2 लोगों से मिलने के टाइम, लेकिन बाद में समझ गए फिर, it's okay. All right. Okay, can we continue? Yes. All right. Okay. So go ahead, create a new chart. I will also create. Again, remember, draw it in what direction? Anti-clockwise. Very good. क्या बात है? Okay, बना दिया? Yeah. Very good. अभी ये कौन से नंबर का हाउस है? First. Excellent. ये? Third. Everybody agrees? ये third है? Okay. ये वाला? 7th. 7. Okay, very good. So अभी यहाँ पे फर्स्ट हाउस में क्या इट इज पॉसिबल कि 1 to 12 कोई भी राशि आ सकती है? ये आ सकती है ना? है ना? Yes, हमने possible. राशियों के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि राशि नंबरिंग कैन चेंज, Yes. हाउस नंबरिंग विल रिमेन द सेम। Yes. तो आपके चार्ट में कुछ अलग नंबर आ सकता है उसमें, Correct. किसी और के चार्ट में कुछ अलग नंबर आ सकता है, राइट? Correct. Correct. तो इज इट पॉसिबल कि फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि आएगी? Yes. Possible. Possible. डेफिनेटली पॉसिबल। 1 to 12 कोई भी नंबर आ सकता है, Hmm. राइट? अभी ये देखो, फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि आ गई, सेकंड हाउस में Second. फ्लावर पैटर्न को याद करो, सेकंड, थर्ड हाउस में Third. थर्ड, फोर्थ हाउस में, Fourth. फिफ्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, Sixth. सेवेंथ में सेवेंथ, एट्थ में एट्थ, नाइन्थ में नाइन्थ, टेंथ में टेंथ, 11th में 11th और 12th में 12th, राइट? अगर ऐसा किसी का आपको चार्ट दिखाई दिया तो इसको बोलते हैं काल पुरुष कुंडली, ओके? ऐसे चार्ट अगर किसी का रहेगा जिसमें फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि है, सेकंड हाउस में सेकंड राशि है, थर्ड हाउस में थर्ड राशि है, मेरी तो नहीं है, राइट? आप लोग अपनी अपनी देख लेना बनाकर। अगर फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि आती है तो इट बिकम्स अ काल पुरुष कुंडली। अभी एक काल पुरुष क्यों बोलते हैं इसको? ये कोई स्पेशल कुंडली नहीं है, ठीक है? मतलब जिनकी काल पुरुष कुंडली बनेगी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपके लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे ऐसा नहीं है, ओके? चैलेंजेस विल बी देयर, राइट? थोड़ा बहुत राशि स्वामी का सपोर्ट अपने को मिल जाता है अगर ऐसी कुंडली होगी, राइट? सो वी विल अंडरस्टैंड दैट लेटर, ठीक है? दिस इज कॉल्ड अ काल पुरुष कुंडली, ठीक है? अभी लेट अस अंडरस्टैंड नेमिंग
of the Rashis and Swamis, okay, or lords of Rashis, okay. अगर एस्ट्रोलॉजी पहले देखा रहेगा तो आपने सुना रहेगा कि ये राशि का ये स्वामी होता है, वो राशि का वो स्वामी होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. Okay, naming of rashis and swamis. Let us learn that. अगर एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से अगर आपको सीखनी है तो राशि का नाम याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है. ओके, राशि का नाम याद नहीं रहेगा ना तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके, सिर्फ राशि का नंबर और वो नंबर का स्वामी प्लैनेट कौन है वो याद रखना है बस, राइट. बट फिर भी फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस वी विल लर्न ओके द नेम्स ऑफ द राशिस आल्सो. और कुछ लोगों को आपको मालूम भी रहेगा. फर्स्ट राशि एरीज राशि, हिंदी में क्या बोलते हैं? मेष लग्न. करेक्ट, मेष राशि. और इनके स्वामी है मार्स, मार्स प्लैनेट इनके स्वामी. अभी मार्स जो है ये कौन है? मार्स जो है ये है वॉरियर, सेनापति, राइट. मार्स इज अ सेनापति. हम थोड़ा बहुत प्लैनेट्स को भी अभी जानना चालू करेंगे अभी आज से, राइट. सेनापति है ये, वॉरियर, ठीक है. देन सेकंड राशि टॉरस राशि, हिंदी में बुलाया जाता है वृषभ. करेक्ट, ऋष बोला जाता है, वृषभ बुलाया जाता है. और इसके स्वामी प्लैनेट इज वीनस. ओके, वृषभ के स्वामी प्लैनेट इज वीनस, ठीक है. और ये जो वीनस है दिस इज, ये हिंदी में वीनस को क्या बोलते हैं? शुक्र. शुक्र, करेक्ट, राइट. और ये जो वीनस जो है दैट इज प्रिंसेस, ठीक है. नखरे करने वाली, आर्टिस्ट, राइट, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, प्रिंसेस. ओके, वीनस इज द प्रिंसेस, ठीक है. हिंदी में क्या बोलेंगे प्रिंसेस को? राजकुमारी, ठीक है. वीनस इज द राजकुमारी, ठीक. थर्ड एरीज, टॉरस, फिर उसके बाद आता है जेमिनाई, ठीक है. जेमिनाई को हिंदी में बोलते हैं मिथुन. मिथुन, करेक्ट, मिथुन राशि. और इसके स्वामी है मर्क्यूरी प्लैनेट. मिथुन के स्वामी है मर्क्यूरी, ठीक है. और मर्क्यूरी कौन है? अगर वीनस प्रिंसेस है तो मर्क्यूरी प्रिंस है, ठीक है. मिथुन प्रिंसेस है तो मर्क्यूरी प्रिंस है, युवराज, ठीक है, नटखट एकदम. उसके बाद जेमिनाई के बाद फोर्थ राशि इज कैंसर, करेक्ट, कैंसर राशि. और कैंसर को हिंदी में क्या बुलाते हैं? कर्क. कर्क राशि. इसके स्वामी है मून, ठीक है. और मून कौन है? मून इज द Queen. क्वीन, वेरी ट्रू, राइट. मून इज द क्वीन. फिर फिफ्थ राशि लियो राशि, ठीक है. और लियो राशि हिंदी में क्या बुलाया जाता है? सिंह राशि, करेक्ट, सिंह राशि. ओके, अच्छा मरियम जी आप म्यूट ही रखिएगा क्योंकि ना थोड़ा सा डिस्टरबेंस है आपके माइक से. ओके सर. ओके, थैंक यू. सिंह राशि. और सिंह राशि के स्वामी कौन है? सन. नहीं सन. ओके, सन. और सन कौन है? सन इज द राजा, सन इज द
king. All right. Sixth Rashi, Virgo. Okay. Virgo हिंदी में क्या बुलाते हैं? कन्या। कन्या। और वर्गो के स्वामी कौन है? अगेन मर्क्यूरी, जो है प्रिंस। ये प्रिंस का उल्लेख अभी दूसरी बार हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? सेकेंड टाइम। ठीक है। सेवेंथ राशि है, एनीबॉडी नोस? लिब्रा। सेवेंथ राशि इज लिब्रा। हिंदी में क्या बोलेंगे? तुला। तुला राशि, राइट। और इनके स्वामी कौन है? वापस वीनस आते हैं सेकेंड टाइम। प्रिंसेस इज कमिंग हियर फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक है, ओके। फिर एट्थ राशि। एट्थ राशि कौन है? स्कॉर्पियो। वेरी गुड, स्कॉर्पियो। और हिंदी में क्या बोलेंगे? वृश्चिक। ठीक है। इसके स्वामी कौन है? अगेन मार्स। मतलब वॉरियर आ गए, दूसरी बार आ गए वॉरियर। उसके बाद नाइन्थ राशि, स्कॉर्पियो के बाद आता है सैजिटेरियस। हिंदी में बोलते हैं धनु राशि। ठीक है। अभी नए प्लैनेट आते हैं यहाँ पे, इनके स्वामी है जुपिटर। और जुपिटर कौन है? टीचर है, गुरु है, राइट। टेंथ राशि, टेंथ राशि कैप्रिकॉन। द टेंथ राशि। और कैप्रिकॉन हिंदी में बुलाया जाता है मकर। मकर। वेरी गुड। और इसके स्वामी है सैटर्न, शनि महाराज। और शनि महाराज को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उनको सेवक बुलाते हैं। ठीक है, शनि महाराज को सेवक बुलाते हैं। फिर एक्वेरियस। और एक्वेरियस को हिंदी में बुलाते हैं कुंभ। ठीक है। और इनके स्वामी है वापस शनि, वापस सेवक। और फिर ट्वेल्थ राशि, इसके स्वामी है इसका नाम है पाइसिस। हिंदी में बुलाते हैं मीन राशि। और इसके स्वामी है जुपिटर अगेन, जो कि है गुरु। ओके, दीज आर द 12 राशिज और उनके स्वामी। अभी डू यू वांट अ वेरी इजी वे टू रिमेम्बर दिस? यस, एकदम सिंपल वे। Remember, salsa method में everything is super simple. Okay, we keep things very simple, right? We will understand this very simple. Ready? Okay. कहानी सुननी पड़ेगी लेकिन एक छोटी सी, चलेगा? Right? Yes. Do you love कहानीज? चलो. So कहानी is this. एक था राजा, ठीक है? और उस राजा को ना 5 नंबर का प्लॉट, 5 नंबर की प्रॉपर्टी, 5 नंबर का घर बड़ा पसंद आ गया। ठीक है, तो वो राजा ने वो 5 नंबर का घर खरीद लिया। अंडरस्टूड? ठीक है, कालपुरुष कुंडली में 5 नंबर का घर खरीद लिया। फिर राजा क्या बोलता है? राजा ये बोलता है,
अरे मेरे लिए तो अति प्रिय मेरी रानी है, राइट? उसको तो मेरे बगल में ही होना चाहिए, और अगर बगल में भी आएगी तो भी ट्रायंगुलर प्लॉट क्यों दूं, मैं बड़ा प्लॉट दूंगा मेरी रानी को, स्क्वायर वाला, राइट? तो राजा क्या करता है, अपने बाजू का ये जो 4 नंबर का घर है, 4 नंबर की राशि है, वो रानी को दे देता है, राइट? रानी क्या बोलती है, चलो वाह वेरी गुड बढ़िया, अभी ना मेरे बेटे को, बड़े वाले बेटे को, पहले वाले बेटे को मेरे बाजू में रखो, राइट? मुझे उसके ऊपर ध्यान रखना है, उसको बाद में राजा बनाना है, राइट? तो ये रानी क्या करती है, अपने बाजू का घर, ये वाला घर किसको दे देती है, प्रिंस को दे देती है। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? ओके। है ना? राजा बोलता चलो आप बड़े वाले को अपने बाजू में रख लो, छोटे वाले को मैं मेरी बाजू में रख लेता हूँ, राइट? तो ये राजा क्या करता है, अपने बाजू का घर प्रिंस को दे देता है, करेक्ट? फिर प्रिंस क्या बोलता है, मुझे तो ना मेरी बीवी के बगैर एक नीवाला भी मुंह के अंदर नहीं जाता, आई कैन नॉट ड्रिंक वाटर ऑल्सो, राइट? आई मिस हर सो मच, आई वॉन्ट टू बी विथ हर ऑल द टाइम, है ना, राइट? तो प्रिंस क्या करता है, ये वाला प्रिंस अपने बाजू का घर प्रिंसेस को दे देता है, राइट? और ये वाला प्रिंस क्या करता है, अपने बाजू का घर प्रिंसेस को दे देता है। ये हो गई इसकी प्रिंसेस, ये हो गई इसकी प्रिंसेस। अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? अभी प्रिंसेस क्या बोलती है, हाय मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, राइट? मेरे नखरे देखो, मेरे जलवे देखो, मेरी अदाएं देखो, मुझे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, मुझे जरूरत है प्रोटेक्शन की, राइट? अभी प्रिंसेस को प्रोटेक्शन कौन देंगे, वो देखो आपको भी आने लग गया, वेरी गुड, राइट? तो ये प्रिंसेस जो है अपने बाजू का घर दे देती है वॉरियर को, और ये वाली प्रिंसेस भी अपने बाजू का घर दे देती है वॉरियर को। वॉरियर बोलता है अरे बाबा रे, ये प्रिंसेस को संभालना बड़ा ही कठिन काम है, राइट? तो मुझे सिखाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, मुझे कोचिंग चाहिए। वॉरियर को कोचिंग कौन करेंगे, गुरु। तो ये वॉरियर अपने बाजू का घर गुरु को दे देते हैं, और ये वाला वॉरियर अपने बाजू का घर गुरु को दे देता है, राइट? अभी गुरु क्या बोलता है, चलो सब करेंगे, हम सब करने के लिए तैयार है, सब सिखाएंगे, लेकिन मेरे खाने पीने का बंदोबस्त करो, मेरा घर साफ रखने का बंदोबस्त करो। तो ये गुरु बोलता है मेरे बाजू में किसको रखो, सेवक को रखो, और ये वाला गुरु भी बोलता है कि मेरे बाजू में सेवक को रखना। हो गया, आपको खाली ये कहानी याद रखनी है बस, राइट? समझ में आई कहानी? यस। अच्छी लगी कहानी? सिंपल है ना? यस। राइट? अभी देखो कनेक्शन, राजा मतलब कौन, सन। सन कौन है, 5वें घर का स्वामी, 5वीं राशि का स्वामी। रानी मतलब कौन, मून, 4थे घर का स्वामी, 4थे राशि का स्वामी। सिंपल। प्रिंस मतलब बोलो, मर्क्यूरी। तो ये वाला प्रिंस जो है 3rd घर का स्वामी और 3rd राशि का स्वामी, और यहाँ पे भी प्रिंस है, तो ये वाला मर्क्यूरी 6ठे घर का स्वामी और 6ठी राशि का स्वामी। नाइस ना, सिंपल नो, राइट? एंजॉयिंग नो? अभी देखो प्रिंसेस, ये कौन है, प्रिंसेस मतलब कौन, वीनस। वीनस। तो ये वाला वीनस 2nd हाउस का स्वामी और 2nd राशि का स्वामी, और ये वाली प्रिंसेस 7th हाउस का स्वामी और 7th राशि का स्वामी, है कि नहीं? वॉरियर मतलब कौन, मेष। प्लैनेट, मार्स। मार्स। तो ये मार्स बन गया 1st हाउस और 1st राशि का स्वामी,
और ये वाला मार्स वॉरियर, ये बन गया 8th house राशि 8th हाउस और 8th राशि का स्वामी। फिर गुरु, गुरु मतलब कौन? जुपिटर जुपिटर। 9th हाउस 9th राशि का स्वामी, और ये वाला जुपिटर भी है 12th हाउस 12th राशि का स्वामी। सो सिंपल इट इज, राइट। और ये सेवक Saturn शनि शनि, 10th हाउस 10th राशि का स्वामी, और ये वाला शनि 11th हाउस 11th राशि का स्वामी। कैसे लग रहा है? अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है क्या? अच्छा ओके, ठीक है, राइट। खाली ये कहानी आप याद रखो, इज इट ओके? यस राइट। राजा, राजा के बाजू में रानी, रानी बोलती है बेटा चाहिए, राजा भी बोलता है बेटा चाहिए। दोनों बेटों को अपनी अपनी बीवियां चाहिए, प्रिंसेस चाहिए। दोनों प्रिंसेस को अपने लिए प्रोटेक्शन चाहिए, राइट। दोनों वॉरियर को अपने लिए गुरु चाहिए, और दोनों गुरुओं को अपने लिए सेवक चाहिए। बस इतना याद रखो। ये 2-3 बार भी कहानी आप दोहरा दोगे ना, तो भी राशि नंबर, हाउस नंबर और स्वामी आराम से याद हो जाएगा, है कि नहीं? करेक्ट। एस्ट्रोलॉजी इज एक्चुअली सुपर सिंपल, ओके। और बाय द वे आज के बाद ना यूट्यूब से सीखना बंद है, ओके। So that means there are 12 Rashis and 6 Swamis. 7 स्वामीज, 7 Swamis. Okay. सन, मून, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, Okay. 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 There are 7 swamis, all right. Okay, yes. See, only sun is not repeated in whole this chart. Rani is also not repeated in the whole chart. Rani is also not repeated, Yeah. right? क्योंकि सन और रानी मिलके ये पूरी फैमिली चला रहे हैं ना, है कि नहीं? आप ऐसे समझ सकते हो उसको। रानियां 2 हो जाएंगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? राइट। तो वो फैमिली कैसे चलेगी क्या मालूम, है कि नहीं? राइट, इसलिए ठीक है। उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, लेकिन वो धीरे धीरे हम अगले लेवल्स में वगैरह पढ़ेंगे उसको, राइट। हर एक चीज के पीछे एक साइंस है, राइट, जो हमने खोज कर निकाला। Okay, enjoyed so far? If you have enjoyed so far, type in IGA in the chat box. Yes, 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 yes. Right? Okay. If you like me, if you like the way we are talking, the way we are teaching, right? Type in IGA in the chat box. Okay? ठीक है। और by the way एक चीज याद रखना, मैं प्रिंसेस हूँ, राइट। और शायद प्रिंसेस के गुण आपने देखे भी रहेंगे मुझ में, राइट। देखे कि नहीं? बिंदास बोल सकते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखे। हाँ, अब ये प्रिंसेस को जो है ना तारीफें बड़ी पसंद है, ठीक है। तो आज के सेशन के बाद वो वाले व्हाट्सएप नंबर पे तारीफें भेजना कि कैसा लगा आपको सेशन, ठीक है, राइट। और 1-2 वर्ड मत लिखना ऑसम। Could you just repeat again? You said princess. So हाँ, how do we arrive at that? वो पहेली कल सुलझेगी, राइट। हाँ जी। वो पहेली कल सुलझाएंगे अपन, ओके। कल या परसों सुलझाएंगे वो पहेली को, ठीक है। आज खाली तारीफों के पुल बांधो बस, ठीक है। राइट, ओके। और आपकी असाइनमेंट एक है आपकी जो आपको सबमिट करनी है, कल सुबह 10 बजे के पहले सबमिट कर देना प्लीज, राइट। असाइनमेंट क्या है? एकदम सिंपल है। इन योर लग्न चार्ट, ठीक है, मेंशन द एड्रेस ऑफ एवरी प्लैनेट। मतलब एक टेबल बना लेना, उसमें लिख देना सन ये हाउस ये वाली राशि, मून ये हाउस ये वाली राशि, राइट, मर्क्यूरी ये हाउस ये वाली राशि। हर एक प्लैनेट का एड्रेस आप अवेयर हो जाओ। ओके। एक पेपर पे लिख लो, उसका फोटो निकाल के मुझे भेज दो व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। आई विल जस्ट गो थ्रू इट वंस। और चेक करना कि वो लिस्ट में देयर शुड बी 13 प्लैनेट्स।
अगर 13 प्लैनेट्स नहीं है तो आप मिस कर जाओगे, कोई तो प्लैनेट आप भूल चुके हो. There should be 13 planets. Understood? Okay. Yes. That is the simple assignment for today. मेरा नंबर वापस लिख देता हूँ यहाँ पे. This is my number. और I will send these images in the WhatsApp group also. Recording also will get uploaded within an hour or so in the WhatsApp group only. Google form भी 1 घंटे के बाद आ जाएगा. Right? So you can create your कुंडली and upload it. असाइनमेंट में वो भी है कि आपको एस्ट्रो सेज में जाकर अपनी कुंडली बनानी है और फिर वो बाद में गूगल फॉर्म में आप अपलोड कर देना है आपको. ठीक है? Alright. This recording we can see na again. Yes, yes. I'll share in the WhatsApp group. Okay. Alright. So what's the time limit of the recording? Any such thing? ऐसा कुछ नहीं, आप सेव करके रख देना अपने पास में, रहेगा आपके पास में. राइट. वो अपन अलग ट्रेनर के साथ जैसा नहीं 15 मिनट ही रहेगा, 1 दिन ही रहेगा रिकॉर्डिंग. वो रख के क्या करूं? जिसको देखना है देखो. राइट. खाली सब्सक्राइब कर देना चैनल को. ठीक है? Sure. Alright. Okay. So can we close for the day? Yes. Yeah. Sure. Alright. और जिन्होंने आपको रेफर किया उनको भी बताओ कैसा लगा आपको सेशन. Yes. Alright. Definitely. Okay. See you. Take care. Bye bye. Thank You are Let's you. close. Bye bye. Thank you, sir. Bye-bye. Bye bye. We're gonna close this in 3, 2, and great, 1. mighty change.